got that option, I think so. Yeah. Assalamu alaikum, everybody. Those who are joining, we have started this webinar series for future supply chain leaders, and this is our first episode regarding the webinar series that we are going to conduct over a period of time. Uh, the first episode is building your career in supply chain, the pros and cons. We have usually seen that people, the students and the people have the difficulties in coming even in supply chain, have difficulties in attending to the issues, the disruptions that take place. We with myself, Hamza Nizam Kazi, having a degree in masters, degree of masters in business administration in supply chain management, and with my speaker here, Mr. Kashif Sarwar, we will be enlightening this people who would be joining here and listening to this video of ours regarding the supply chain issues, the pros and cons that they can help, that can be helped with them for their education as well as in their jobs or in their life, which they have taken the certification of supply chain management. We have come across many people that do have the knowledge, that they have the understanding of supply chain, they are very good, but unfortunately there are some skills that are required right now that are the basics now for the supply chain people to have them in their kitty. For this, myself, Hamza Kazi, and Kashif Sarwar, who is Group Head Supply Chain at Jaffa Brothers Private Limited. It's a conglomerate, and having 20 years of past experience working in various multinationals and local companies. Kashif Sarwar would be highlighting with us the pros and cons that are required, and that we have to the people have to be vigilant of in when in supply chain department, and how these issues and the disruptions that are faced by the supply chain can be tackled by them. So with all due, I welcome Mr. Kashif Sarwar. Kashif Sarwar, hope you're well. Thank you so much. It's my pleasure, Hamza. Well, I'll be bilingual. I'll be using English as well as Urdu for our audience, which we believe would be across the globe as well as working here in Pakistan. Kashif Sarwar साहब, सबसे पहला सवाल, my first question to you is, how do you see people in currently working in supply chain department, जो कि future leaders हैं पहले से, they are aware of the supply chain disruptions and everything, but they are not able to communicate that, able to handle that issues that come across right now. What is your message to them, first of all? Yeah, Hamza, thank you so much, Hamza, for bringing this important question. Actually, for before replying this question, I just want to go for to explain something about the VOCA model. Actually, nowadays we are living and working in the VOCA model. Actually, it's a model for the volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So it's now the supply chain is operating the same model. So supply chain professional should have the capability to handle and tackle all such pressure. So there are two types of the skills. Normally, one is the hard skills, the core supply chain skills, and second is the soft skills. So what I've seen, so I want to divide my discussion in two parts. One is for the current professional, and second is the future professional. So let's discuss about the current professional actually. So last 5 to 10 years, supply chain dynamics has been completely changed. So previously, people were working on the lengthy process, and unfortunately, still they are working with the same approach. So they are following the same manual process. So they are missing the datization process, and they are lacking the analytical skills as well. So what is happening? Instead of doing the task for 10 minutes, 15 minutes, they are doing the same task for 6 to 8 hours, right? So number one skills is the data analytics, and you should have to know about it, how to present the data to the management and your bosses, actually, the person you are reporting. So now time has been changed. It's not about 9 to 9 p.m. job.
is about the outcome of the job that is the most demanded. Either you will able to complete the task in 1 hour or 10 hours. So it's depend upon your outcome of the data actually, or what outcome of your task. Second factor that I want to elaborate is we are still working in the silos actually. If you're talking about supply chain is about the integration of the multiple sub functions that start from the demand planning, supply planning, then it's come under the sourcing, manufacturing, and then distribution, logistic management. So, so people should have to be a holistic view about the supply chain, how the your action is impacting the other function, and ultimately that impacting the your end customer and your internal customer, along with the financial factor as well. Because if you will not able to deliver the product on time, you will not able to achieve the revenue. So all the companies are operating in this world to get generate the money, earn the money. Third skills that is very deficient or lacking in the supply professional is a disconnection about the supply chain finance actually. So they don't know what is the income statement, unfortunately, and what is the impact of supply chain in the P&L or income statement, which metrics will help us to add the value in the organization. And if you take the wrong decision, so what the impact the organization will face actually in the form of the number or in the form of the currency. The second thing is this balance sheet. Unfortunately, I'm interviewing with a several professional. So as per the recent research of the World Trade Economics, supply chain leaders are facing 70% of skill shortage. It means if they are taking the interview for 10 candidates, I'm talking about the global matrix. I'm not talking about the, though you can imagine what is the impact in the Pakistan. So I can say in Pakistan, there's 90% of the shortage. Those resources are available, and mashallah, alhamdulillah, several Pakistani universities are, uh, uh, is now offering a supply chain program that I will discuss in my second part. So balance sheet, when I have to come again to the balance sheet, then I will in the second part, just remind me, Hamza, I will explain to the young professional regarding the finance. So balance sheet, we don't know what is the impact of asset, what is the impact of the payable, if you are paying right now, if you are paying after 60 days, so how much of financial benefit you can take. Similarly, if you are dealing in the currency, so it is better to pay off today rather than the dollar rate or the currency will go further and it will impact. So all these things should become when you know the finance basic acumen actually. The last part is about the soft skills, because supply chain in our country, if you're talking about supply chain in Pakistan as well in the Middle East, is still evolving. So thanks to the COVID, I know it's very bad thing that happened in the COVID in the pandemic, but it's evolved the supply chain professional. So supply chain now is from back office to the board office, but unfortunately we we were unable here, we are unable to prove ourselves to be a strategic department, strategic function due to the lacking of these skills. So, but good thing is that all the companies are call is supply chain strategic part. MNC is by birth, they are coming from the global thing. So there is a by default that is happening, but from the local company where we are working. So it is very hard to prove, but again, opportunity is there to prove yourself, because if you save $1 in your procurement, your bottom line will be increased by the $1. Similarly, if you want to earn $1 in your bottom line, you need to increase at least $5 of the sales. So you can imagine in such market dynamics, saturation, market has been saturated. So how is difficult to enhance the market share or sales revenue? So definitely supply chain is the enabler and the strategic function for the company, and now it's become the board topics. So if the supply chain professional want to grow, they need to be a more comprehensive and earn the skills thanks to the lot of free tools that are available in YouTube.
Udemy, and thanks to you, you have just Uh, created this channel as I would well. like to thank you, Kashif. I'd like to add one more thing here. Just Yes, please. आपने data analytics की बात की है. So can you share some examples या share some things for this our viewers कि क्या वो इस तरह की data analytics में skills अपनाएं कि उनको supply chain में plus finance जैसा भी you have just said finance के साथ link integration होना जरूरी है. तो वो ऐसे क्या डेटा एनालिटिक्स के टूल्स देखें. आई थिंक सो यू आर कमिंग टुवर्ड्स द यूट्यूब थिंग एंड एवरीथिंग. तो एक स्टूडेंट या एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो किस तरह इस स्किल्स को या जो एग्जिस्टिंग जो अभी जॉब पर हैं अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर वो किस तरह अपने स्किल्स को थोड़ा एनहांस कर सकें. Perfect. So I want to start from the Excel one, basic one. So it's for both for the young supply chain leader जो अभी academics के अंदर है, जो अभी career का early start के ऊपर है, जो अभी more than 2 years से ज़्यादा है, 5 years, 10 years, even experience like us as well. For the CSU भी ये advice actually. So MS Excel, I think everybody is working on it. So what we are doing? We are downloading the report in ERP. और उसके बाद every time we are making the pivot and making the report, same thing that we are repeating the thing actually. So it's wasted a lot of time. And if you are connecting with the team members जो कि आपके मुख्तलिफ origin में बैठे हुए हैं, suppose when I was in Dubai, so my team member was sitting in the 7 countries, so it was very difficult to connect the data and make the thing possible कि मैं एक ही लैंग्वेज में बात करूं और हम कम्युनिकेशन को एनहांस कर सके. So what we have done, एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर दैट्स कॉल्ड द पावर क्यूरी. पावर क्यूरी को आप आई थिंक इट्स विल टेक 8 to 10 hours ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम इंटरवल. उसमें फायदा ये होता है कि आप उसको शेयर फोल्डर पे फाइल रख के उसका एक फॉर्मेट सेटल कर दें और उसका डैशबोर्ड अपने पास बना लें फिक्स. और जब भी आप उस फॉर्मेट के अंदर जब रिपोर्ट के अंदर बेसिक डेटा में चेंजेस होगी आपकी रिपोर्ट पे ऑटोमेटिकली नजर आ रहा होगा. सो यू अवॉइड the repetitive of the task और things आपकी विजिबल हो जाएगी. So you don't need to be dependent कि 10 जगह से डेटा आ रहा है फिर आप कलेक्शन हो रही है फिर एक फाइनल चीज बन रही है. So we are wasted around week time or 10 days time. So in the one click we can do it. We don't need any specific requirement, any specific skills. We just learn the how to use the Power Query that you will easily understand within 8 to 10 hours training. You just type the YouTube how to learn Power Query, how does the Power Query will link work in the Excel environment. So it will help you out actually that thing. Second thing I want to discuss power. We are listing the buzzword is business intelligence BI tool actually Microsoft BI tool. So my BI tool is also supported by the Power Query. So once you have get the comfortable in the Excel, you can go and then you can build your automatic dashboard as well in the same form that people are impressing to their bosses. And still, in Pakistan, I think very few function. So these are two basic things. I think by combining 10 hours, you can get the training of both the things. Regarding your third part of the question about the financial element. So finance, first we need to understand supply chain professional, how supply chain professional impact in the financial thing actually. So I divided into three types. One is the service level. If we will able to achieve the on-time delivery to the customer, lead time reduction, and right product, right time, right quality, we will able to enhance the service level. So ultimately that is enhancing the your top line. This is our supply chain indicators. जहां से आपकी top line जो बढ़ती है supply chain का वहां पे impact आता है. So for that thing we are using the on time in fulfillment matrix, on time delivery to the customer. So these are two key KPIs or indicator that is monitoring your on time to delivery customer. अगर आप 100% कर रहे हैं 90% कर रहे हैं so आपका रेवेन्यू रफली इम्पैक्ट करेगा. अगर आपके फ्रिक्वेंटली आप स्टॉक आउट के ऊपर जा रहे हैं 30% 40% तो रफली इसका मतलब है यू आर लूजिंग योर मार्केट शेयर एज वेल. एंड इसके एक और भी अदर पॉइंट भी है, अदर फ्लिप साइड भी है कि अगर आपकी एक्सेस इन्वेंट्री रखी हुई है और तो कि आपके पास इन्वेंट्री जबरदस्त है तो हो सकता है 100% कर रहे हो बट उसकी कॉस्ट पेयर कर रहे हैं. So again, it should be a balance and trade-off. Second matrix is about the cost. This is one of the critical factor as I discuss about the
इनकम स्टेटमेंट। सप्लाई चेन की कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेवल पे आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। डायरेक्ट मटेरियल, एज आई मेंशन, $1 सेव करेंगे, $1 बढ़ेगा। $1 बढ़ाने के लिए $5 की सेल बढ़ानी है। सेकंड थिंग इज अबाउट द मटेरियल प्रोडक्टिविटी के बाद जो सेकंड थिंग है लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी आप लीन मैनेजमेंट के थ्रू, काइजन के थ्रू, सिक्स सिग्मा के थ्रू किस तरह चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इनहेंस करें। सो दैट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर द आप लेबर को रिड्यूस कर देंगे, आप किसी को फायर करा रहे हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना करे किसी के रिस्क के ऊपर बात कर रहे हैं, बट व्हाट यू आर डूइंग इंस्टेड ऑफ 10%, 5% डूइंग द सेम थिंग एंड दैट अदर 5% डूइंग सम अदर थिंग एक्चुअली। सो लेबर के बाद जो थर्ड इज फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब कि अगर आप कोई फैक्ट्री ओवरहेड के तहत आपकी यूटिलिटीज, वाटर और जो भी आपके एमआरओ इन्वेंटरीज यूज हो रही हैं, इफ यू मेक इट ट्रेसेबल फर्स्ट, उसके बाद आप उसके अंदर चीज़ों को अप्लाई करें। जस्ट लाइक आपके एनर्जी सिस्टम लगा हुआ है और आप पावर सेविंग की चीज़ें यूटिलाइज करना स्टार्ट करें, तो आपका एक इम्पैक्ट नजर आएगा आपके फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर। सिमिलरली आप सोलर पैनल की तरफ या सोलर सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर नजर आएगा। सो दिस आर द 3 एलिमेंट जो कि सीओजीएस के अंदर सप्लाई चेन इम्पैक्ट कर रहा होता है। जब आप अपनी केपीआईज को ड्राइव कर रहे होते हैं, एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट केपीआईज बट फंडामेंटल इज द सेम। उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जब ग्रॉस प्रॉफिट के आप नीचे जा रहे होते हैं तो आपके पास एक इंडिकेटर आता है एचजीएस, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस। So that comprises the indirect procurement. So let me elaborate about the indirect procurement. Procurement दो में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज अ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का मतलब है जो आप अपने एंड कंज्यूमर के लिए ले रहे हैं रॉ मटेरियल और जो चीजें आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन में यूज हो रही है, दैट्स कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट वो तमाम चीजें जो अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं फॉर द कंपनी। सो दैट्स कम अंदर इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। जिस तरह आपने ह्यूमन रिसोर्स की सर्विसेज हायर की हैं, रिक्रूटमेंट सर्विसेज हैं, इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, आपकी वेयर हाउस सर्विसेज हैं, ठीक है। और तो ये तमाम चीज़ें आईटी सर्विसेज हैं, आईटी कंसल्टेंसी है। सो लीगल सर्विसेज हैं। एक लीगल वाला बंदा 5 मिलियन ले रहा है, वही काम आपने 3 मिलियन में सेम क्वालिटी को मेंटेन रख के कराया तो यू हैव सेव द 2 मिलियन। सो यहाँ पे आके इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का एक एलिमेंट आता है, राइट। तो ये सेकेंड एलिमेंट है जो कि कॉस्ट के अंदर आता है। थर्ड एलिमेंट इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। आई थिंक आजकल के इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर वर्किंग कैपिटल इज द बैकबोन फॉर एनी कंट्री। सो वर्किंग कैपिटल के 3 कंपोनेंट्स है। इन्वेंट्री, सो अगेन इन्वेंट्री इज डिपेंड अपॉन योर सप्लाई चेन मॉडल। सो देयर इज नो वन फिट मॉडल फॉर द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन ड्राइव होती है, अगर स्ट्रेटेजिक पार्ट है तो बिजनेस प्लान से, स्ट्रेटेजिक प्लान से। अगर आपका प्लान है कि इन्वेंट्री कैरी करनी है, रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन है, योर सप्लाई चेन इन्वेंट्री फिगर विल बी डिफरेंट। अगर आपकी सप्लाई चेन लीन के ऊपर है और यू आर गोइंग फॉर द एफिशिएंट सप्लाई चेन, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन, तो आपके इन्वेंट्री का लेवल अलग है। बट अगेन इन्वेंट्री इज अ की, देयर इज अ किलर as well as the winner as well for the companies. Second element है accounts payable. So nowadays when we are dealing with the foreign currency, so we are be very careful जब हम negotiate कर रहे हो कि इसका impact क्या होगा। Right now dollar is traded around 300. गॉड फॉरबिड अगर डॉलर 400 पे आ गया और आपने 30 डेज का पेमेंट हम लिए, तो इसका मतलब है जो आपकी कॉस्टिंग है 300 के बजाय 400 के अंदर आपकी मूव हो जाएगी। सिमिलर अगर लोकल करेंसी में कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली इट विल गिव और लेवरेज और फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव एज वेल कि आपने सप्लायर को पैसों को यूटिलाइज करते हुए आपने अपनी सप्लाई चेन को efficient and effective बनाया है। So these are 2 indicators that drive your working capital. Third one is a receivable. Again, receivables come under the finance side और customer side के ऊपर आ रहा होता है, but again these 3 element मिलके आपके working capital को drive कर रहे होते हैं। तो in short, in summary, service, cost and working capital. So तीनों का ट्रेड ऑफ, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके सप्लाई चेन को स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन बना रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस। थैंक यू काशिफ साहब इतनी डिटेल में डिस्कशन करने का। अच्छा, 3 पॉइंट जैसे अभी आपने बताया रिगार्डिंग, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द करियर के जो एग्जिस्टिंग लोग हैं सप्लाई चेन के अंदर, वो और जो न्यू लोग आना चाह रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट, वो क्या चीज़ें स्किल्स देखें। जैसे अभी आपने बताया फाइनेंस से रिलेटेड ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लिंक करना सप्लाई चेन के साथ।
So usually people are not able to integrate these things, और वो अपनी डोमेन में एक स्टैंडर्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर चीजें चला रहे होते हैं, जस्ट पुटिंग अप डेटा इनटू ईआरपी सिस्टम, चाहे वो एसएपी हो, ऑरेकल हो, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स हो, और XYZ जो भी सॉफ्टवेयर ईआरपी सिस्टम कंपनीज के अंदर लगा हुआ है. सो नाउ कमिंग बैक के, अब if a person is already working in an environment जहाँ पर he's just making he is in supply chain department and he is just been given the role, मैं example इसलिए मतलब quote कर रहा हूँ ताकि we can have a more good discussion on it, कि एक बंदा है वो supply chain department में probably procurement या indirect procurement देख रहा है या technical procurement भी देख रहा है, and he is just putting up data into the system. जो अभी आपने बात की है कि स्ट्रेटेजिकली जो है वो डिसीजन मेकिंग, उसको फाइनेंस के साथ लिंक करना, उसको लीगल के साथ लिंक करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पार्ट देखना, तो वो थोड़ा लोगों के अंदर लैकनेस पाई जाती है. तो हाउ डू यू थिंक दे शुड ओवरकम दिस? इस तरह उसको किस तरह जो है वो अपने सॉफ्ट स्किल्स के साथ, अपने टेक्निकल स्किल, मे बी ही इज वेरी गुड इन टेक्निकल स्किल, ही इज वेरी गुड इन नेगोशिएशन एवरीथिंग, बट जब वो एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वो थोड़ा लैकनेस आ जाती है उसके अंदर. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, उसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए? बिकॉज अभी हम प्रोज के ऊपर बात कर रहे हैं, देन अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो कॉन्स के ऊपर होगा, दैट इज द डिसएडवांटेजेस के किस तरह जो है वो एक सप्लाई चेन का बंदा वो पीछे रह जाता है और बाकी मार्केटिंग एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो आगे निकल जाते हैं. Perfect. I think is one of the very valid question. Actually, I'm also facing this challenge in my previous company as well. Some sort of challenges to my current company as well. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं. So first you need to map the process on the paper. So there is no need for the fancy thing. So you need to know कि point A से लेके Z तक आपके पास कौन कौन से steps हैं. So let me एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल आई एम एन इंडिविजुअल, लेट्स डिस्कस इट, कि मैं अभी Yeah. प्रोक्योरमेंट देख रहा हूँ, तो आई शुड जॉट डाउन माय जेडी पूरा, कि मैं पूरा Yeah. दिन क्या काम करता हूँ, किस तरह क्या क्या चीजें हैंडल करता हूँ. मतलब अगर हम इस तरह लेकर चले. Yeah, okay. Perfect. So I want to explain the cycle actually. Thank you so much. I think it will be एक more जेनरिक साइकिल, good बिकॉज way. वी Yeah. नो वी So गॉट लॉट ऑफ mm, डिपार्टमेंट्स, वेयर हाउसिंग है, प्रोक्योरमेंट है, सोर्सिंग है, वी गॉट है. बट अगर हम जेनरिक सप्लाई चेन की बात करें तो एक, जैसे अभी आपने बोला जॉट डाउन मैपिंग, प्रोसेस मैपिंग जैसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप मैपिंग करें अपनी एरियाज की कि yeah. आप क्या क्या देखते हैं. So let's start. Take example of the P2P cycle is a procure to pay cycle. Procure to pay cycle में पहला steps आपका होता है कि आपके पास आपका स्टेक होल्डर, आपका इंटरनल कस्टमर आपको रिक्वेजिशन साइन करता है, राइट? और उसके अंदर फिर आपका लीड टाइम एक्स वाई जेड एक्सपेक्टेशन होती है, और सिमिलरली आपके पास एक बजटेड प्राइस होती है, right? So I'm just giving the advantage in the giving explanation in the layman format. So मैं कोई भी assumption नहीं ले रहा, just मैं एक simple सी flow कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी इसमें बात और भी आ सकती है कि बजट पहले हो गया बाद में हो गया. एक रिक्वेजिशन आई आपके पास कस्टमर की तरफ से, स्पेसिफिकेशन आई, एक लीड टाइम आया, ठीक है, और एक बजट आया आपके पास, राइट? उसके बाद आपने उसको रिव्यू किया, अपने करंट वेंडर बेस को देखा, मार्केट रिसर्च के थ्रू अगर आप कैटेगरी मैनेजमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं, कैटेगरी मैनेजमेंट क्लासेस जो वर्किंग किया, आप अपने वेंडर को अप्रोच किया, और आपने फिर अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट है या आपने आरएफक्यू रेज किया तो आपने आरएफक्यू रेज किया. उसके बाद पीआर के बाद आपके पास आरएफक्यू रेज हो गया, आपने मार्केट से रेट लिए, आपने कंपैरेटिव बनाया, देन आप अपने कस्टमर के पास, अपने इंटरनल कस्टमर के पास गए, और फाइनली आपने एक म्यूचुअल विन विन सिचुएशन के साथ एक वेंडर को फाइनलाइज कर लिया. फिर वो कन्वर्ट हुआ पीओ के अंदर. पीओ के होने के बाद वो प्रोडक्ट गुड या सर्विसेज वो डिलीवर हुई अकॉर्डिंग द स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क, या जो आपकी गाइडलाइन है सर्विस की सूरत हाल में डिलीवरेबल्स के ऊपर. और फिर वेयर हाउस जीआर करेगा, और फिर आपकी इनवाइसिंग का एक एलिमेंट है पेबल का, वो एलिमेंट कब कंक्लूड होगा, राइट? इम्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास कस्टम वगैरह भी चीज़ें आ जाती हैं. सपोज अगर एक एक बंदा लोकल प्रोक्योरमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, और एक रिक्वायरमेंट आती है, राइट? आप आपके पास बनो, आई जस्ट वांट टू कॉल द एग्जांपल ऑफ द इन माय एक्सपीरियंस दैट आई फेस एंड माय टीम इज फेस. एक ट्रांसपोर्टिंग सर्विस की एक लेनी है कराची से लेके लाहौर पेशावर, और बिजनेस है बजट दिया उसका 1 लाख रुपीज. और जब मैं मार्केट में गया, देन आई केम टू नो कि यार ये तो 4 lakhs की इसकी मार्केट है. सो दिस आर रियलिस्टिक बजट.
अब वहां से फिर एक प्रेशर डेवलप होता है कि आप यू गाइस आर गिविंग द हाई ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक साउंड मुझे आता था कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत हाई है, आप लोग बहुत अच्छा निगोशिएट नहीं करते। सो व्हाट आई हैव डन, आई सेट विद माय टीम एंड आई जस्ट जॉट ऑन द प्रोसेस कि भाई ये बताएं, जब ये प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्टिंग ले रहे होते हैं, सो आर दे इन्वॉल्विंग यू और नॉट? सो गेस आंसर वाज नो। So they were assuming. And then I asked the different tactical question as well. So why you are not challenging to the internal customer? Yes, because according to them कि भाई हमें किसी ने बताया नहीं, या हम करेंगे तो वो 10 चीजें लेके आएंगे। तो आप लाइकनेस की जो बात कर रहे हैं, तो अगर फंडामेंटल आपकी नहीं हो, तो फिर 3-4 चीजें हमने इसमें डिस्कशन की। एक मिसकम्युनिकेशन, मिसअलाइनमेंट एंड ओवर एक्सपेक्टेशन, unrealistic expectation. Then I went to the business side, to the CEO and director. I sit with them and I discuss about it. Yes, sir. कुछ इस केसेस जेन्युइन है, बट इज माइट बी पॉसिबल 10%, 20%, बट 80% ऑफ द टाइम दिस इज अ रूट कॉज एनालिसिस। आपकी टीम कोई प्रोजेक्ट करती है, देन नेवर शेयर विद माय टीम। एंड सिमिलर आई कोटेड द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि आप मेहरान की कीमत में आप पराठो लेना चाह रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो उस दिन के बाद से वो साउंड बहुत हद तक कम हो गई है, और नाउ विल बिकम द की स्टेक होल्डर, key partner when any new project quoted actually for it. Again, तो इसमें कुछ exercise काशिफ जी। साहब, जो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट एक तो कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल को अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस टीम्स के साथ, या जो जिस भी डिपार्टमेंट के साथ वो डील कर रहा है जो कि उसके इंटरनल कस्टमर है, उसके साथ क्लैरिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर एंड कम्युनिकेशन के अंदर। Yes, ठीक है, very good. और जो वो बेसिकली टू कम ऑन द स्ट्रेटेजिक साइड, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, सो अब नाउ उनको थोड़ा स्ट्रेटेजी की तरफ आना है, तो दैट मीन्स दे हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आज जैसा आपने अर्लियर बोला था कि सॉफ्ट स्किल्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी बजट बन रहा हो, जब भी चीजें हो, तो वन शुड गिव हिज इनपुट के रिगार्डिंग द बजट के। अगर अभी जैसे आपने एग्जांपल दी ट्रांसपोर्टेशन की, लाख रुपए का बजट था, बट इट वाज बेसिकली इन द मार्केट 400,000। तो वो जो डिफरेंस आया वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन आया, बिकॉज सप्लाई चेन प्रोफेशनल जो डिपार्टमेंट में है ही वाजंट कंसल्टेड ऑन इट। ठीक है, तो Very एक तो good. एक तो आपने स्किल्स बताए जिसके अंदर पावर बीआई, पावर क्यूरी। अब Financial skill. जो है वो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, एंड देन आपको जो है वो कम्युनिकेशन क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज यू शुड बी अवेयर कि क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर। ठीक है, Yes, जस्ट नॉट जस्ट yes, true अबाउट India. डेटा एंट्री, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन एंड डायरेक्ट डीलिंग विद द बिजनेस यूनिट्स। Yes, indeed. Actually, this is one of the mandatory skills. So I came across one of the very good quote last month कि सप्लाई चेन वाला अपनी चेन लेके चले, अगर कहीं जगह नहीं मिल रही, कहीं इनविटेशन नहीं मिला, तो दे शुड बी कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव इस तरह होना चाहिए सिस्टम के अंदर पेनिट्रेटेड कि दे कैन गो एंड देन अटेंड इट। क्योंकि अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द लोकल पर्सपेक्टिव इज अगेन इज चैलेंजिंग, बट आई मस्ट हैव टू नो कि मुझे अपनी बात किस तरह प्रूफ करनी है। जिस तरह आपने एक सवाल किया कि सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, दे आर वेरी गुड इन प्रेजेंटेशन, दे आर वेरी गुड इन नंबर्स, उनकी चीज़ें टेंजिबल होती हैं, हमारी चीज़ें भी टेंजिबल होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद हम उस साइज से देखते नहीं है। उसका फायदा ये होता है हमारी कोई भी सेविंग होती है वो हाईजेक हो जाती है बाय द सेल्स या फाइनेंस के थ्रू, और वो कभी हाईलाइट नहीं होती। और एक स्टैंडर्ड जवाब मिलता है कि यार ये तो आपकी ड्यूटी है एक्चुअली। सो व्हेन यू हैव सच टाइप ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज and comprehensive understanding of the financial ecosystem and your business insight and your cost element, जो service cost और working capital के prospect से, so it will be more easy for us, क्योंकि I think हमारी आने वाली series के अंदर multiple topics हैं, so that we will be further elaborated, और कुछ हम example भी quote करने की कोशिश करेंगे कि supply chain saving model या value addition model, जिस तरह हनीवेल में लास्ट कंपनी के अंदर हमने स्टार्ट किया था, हॉर्सेस ट्रीज से पहले भी हमने स्टार्ट किया था कुछ इसी तरह का, समथिंग आई कैचिंग, और उसको फिर कनेक्ट कराना हमारे मैनेजमेंट कमेटी के बाद, देन अल्टीमेटली टू द बोर्ड साइड। सो अगेन उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है,
और परसिवियरिंग स्किल, यू नीड टू बी कन्विंस्ड। और हार्श कमेंट के ऊपर आपको बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज यू विल गेट अ वेरी हार्श कमेंट, यू डोंट नीड टू बी डीमोटिवेटेड। तो आपकी अगर Coming to प्रिपरेशन this, अच्छी होगी। coming to Yeah. this point, जो अभी आपने बोला कि you one does not have to be demotivated because we usually see in supply chain that जैसे अभी you just mentioned कि supply chain को इतना highlight नहीं किया जाता because the savings get hijacked by the marketing team, the sales team, और फिर वो जो extra budget होता है वो फिर वो लोग use कर लेते हैं and then दे गेट मोर सेल्स। और वही वाली बात के जैसे आपने बताया कि प्रोक्योरमेंट का $1 सेव करना वो बॉटम लाइन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, बनस्बत सेल के $5 को ऊपर सेल करना और फिर उसको बॉटम लाइन में इम्पैक्ट शो करना। सो नाउ कमिंग दिस, अब जब फॉर एग्जांपल इस तरह हो रहा हो तो कि वेयर द नंबर्स गेट हाईजैक्ड, वेयर द सेविंग्स गेट हाईजैक्ड, so what a professional should do in order to become to highlight himself or herself कि सर कि इस तरह ये चीजें इनकी सेविंग्स हुई है फॉर द मंथ, फॉर द क्वार्टर और फॉर द ईयर। Yeah, I want to start from the operation side. You know, there are three factors. One is our strategic, second is a tactical thing, third one is the operational side. If you are good in making the strategy, but if you are not good in the execution, so there is no use for the strategies. So more than 90 companies जो एक ग्लोबल ट्रेंड है, स्ट्रेटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाती है, राइट। सो हमारे क्या होता है कि हम एग्जीक्यूशन हमारी बहुत पुअर होती है। तो जब अपने स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन से, और प्रोसेस आर हाईली सब ऑप्टिमाइज। as I was in global workshop yesterday with the kinetic logistics, so our topic was the same thing कि जो technologies companies है, how it is, you know, how they are enabling the companies to make a more integrated supply chain or logistic ecosystem, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हम अपने सप्लाई चेन के अंदर भी डिसइंटीग्रेटेड होते हैं। इवन के एक बंदे का टास्क दूसरे बंदे से शायद दे आर अनअवेयर अबाउट इट, और दोनों एक दूसरे के अगर यू नो प्रोसेस को लिंक कर दें तो थिंग्स हैज बीन ड्रास्टिकली चेंज। एग्जांपल देना चाहूंगा, वन ऑफ द एग्जांपल, इफ यू गिव मी द परमिशन, सो आई वांट टू गिव द एग्जांपल। वन ऑफ द शिपमेंट दैट फेस लास्ट ईयर, उसमें हमारी प्रोक्योरमेंट की टीम ने बड़ी मेहनत करके, रात दिन एक लगा के, इवन क्या रिमेम्बर के रमजान के दिन छुट्टी का था, लास्ट डे था, तो बेचारे ने कस्टम क्लियरेंस करा के शिपमेंट को डिलीवर कराया कस्टमर की साइट पे। टॉप शिपमेंट डायरेक्ट पोर्ट से हमने कस्टमर की साइट पे सारा हो गया। इट वाज वेल डन, एवरीथिंग वाज यू नो वेंट गुड, और बड़ी क्लैप हुआ उसके ऊपर, मतलब कि मैसेज के ऊपर, यस वेल डन एक्स वाई जेड। और एवरीबॉडी यू नो वेंट ऑन द ईद हॉलीडेज। हॉलीडेज के अंदर थे, एवरीबॉडी वर बिजी इन द हॉलीडेज। So when we will come back, we will come back on the after the holidays. So we noticed कि ये नंबर हमारी रेवेन्यू में क्यों नहीं आ रहा। जब मैं उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो देन आई वी केम टू नो कि वेयर हाउस का के पर्सन को पता ही नहीं है इसकी जीआर करने। So again, this is a sub-optimized in the way in between supply chain function. So come back to the original topic. हम अपने प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द विद इन द सप्लाई चेन। जब आप प्रोसेस को सिक्स सिग्मा इज अ सिंपल टूल, इसमें मुख्तलिफ टूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको मैपिंग सीखनी है, यू कैन जस्ट मैप इट आउट फ्लो चार्ट के थ्रू ए टू जेड, कोई फैंसी जरूरत नहीं है, पेपर पे लें, चार्ट पे आ, और उसको आप जो जो बॉटल नेक्स एरियाज हैं, प्रॉब्लमेटिक एरियाज को सर्किल कर दें। देन यू हैव टू सिट विद द टीम, फाइंड द टॉप एनालिसिस। फर्स्ट यू कैन ब्रेनस्टॉर्म, आपको इश्यू नजर आ जाएंगे 20-15, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। जब उसको सॉर्टेड करने जाएंगे तो यू विल एबल टू फाइंड द टॉप 5-6 प्रॉब्लम, जो कि आपके 80% ऑफ द प्रॉब्लम का वाइज बन रहे कॉजेज एक्चुअली। So you started to optimize that thing. So or normally this time and cycle time interval takes around 2 to 4 months or sometimes 6 months as well. Depend upon your process. अगर आप एक आप प्रोफेशनल ईआरपी पे काम कर रहे हैं, या आप हाईली इंटीग्रेटेड ईआरपी पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका डेटा हाईली इंटीग्रेटेड, तो आई थिंक इट इज अ टास्क फॉर द वन मंथ। अगर आप डिसइंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इट कैन टेक 4 to 6 months। तो आई थिंक जो सप्लाई के प्रोफेशनल है उनके लिए एडवाइस ये है कि पहले स्टेज के अंदर अपनी चीजों को विजिबल करें। सेकंड थिंग कि अपने प्रोसेस के अंदर आप अलार्म क्रिएट करें। फूड इंडस्ट्री के अंदर, यू नो, फूड इंडस्ट्री के अंदर आई वर्क विद कोको कोला।
सो वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी कि जब ग्लास बॉटल होती थी तो ग्लास बॉटल ब्रेकेज होती थी, और जो जो उसकी कांच या जो उसके ग्लास होते थे वो पानी के अंदर पैन चले जाते थे बॉटल के अंदर। डेफिनेटली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो आगे करते हुए मार्केट में चले जाते थे। सो वहाँ पे वो बड़ा क्रिटिकल फेजेस करना होता था, क्योंकि अगर वो एक इंसान की जान भी ले सकता है एक्चुअली। सो व्हाट वी हैव डन इन दैट सिस्टम, हमने कुछ पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स लगाए हुए थे, क्रिटिकल पॉइंट एंड हाईली क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। सो तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट या हाईली क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर होता था, वहाँ पे विजिलेंस हमारी ज़्यादा हो जाती थी। कुछ कुछ जगह हम रिडार से देखते थे, मतलब कि ट्रैकर से देखते थे, कुछ जगह हम मैनुअल देखते थे। सिमिलरली जब आप प्रोसेस के ऊपर आए, आपका प्रोसेस इतना विजिबल इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि प्रॉब्लम कोई भी आए तो वो अलार्म प्रोसेस आपका स्टेप खुद बता दे कि स्टेप 6 पे प्रॉब्लम है, स्टेप 8 पे प्रॉब्लम है, स्टेप 9 के अंदर प्रॉब्लम है। और जब आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, you will easily sort it out the issue. I also want to share one of the example that I shared from the Chinese. So when I was in Middle East, so I worked with the Chinese counterpart as well. There's a part of my company. So one of my boss shared the one story. Kashif, just learn one thing from the Chinese people. If you have seen, if you have noticed any problem or any mistake, they will never repeat it. I'm working with the Chinese team for last 10 years. This is my observation. Learn that skill and try to implement in your work. So believe me, I also notice the same thing. Whenever there is some issue, it never happen again. So one day I asked the lady, what is your process? So Chinese people are very conservative people. Normally they are not communicating on the team Skype. So they are more focused on the chat or something. So I have a good friendship of the one lady, Candy. So she was online. So I asked her, please, I want to see it. So she show me the one dashboard that was they made it in the on the wall actually, where end to end process was map it out. So what the she shared with me, कि whenever any process or problem area trigger, so what we are doing, we are going there in our process and market, and then we have asked what went wrong actually. So after it, we will do the root cause analysis. If there is a problem with the person, we train it and make sure the problem will not repeat it. If there is any process gap or any other issue, so we have to try to another control or make the process efficient. So I think this is the first and the top most priority, that first step toward the strategy supply chain. As per my experience, as per knowledge, if you will able to solve this issue, so you have done 80% of the task actually. So remaining 20% is about the connection of the operation to the tactical and strategic task. So if you have the skills that you have discussed earlier, so it will be more easy for you to go and then connect it. But your operations should be well integrated, well managed, and well responsible as well. I hope Thank answer, you. Hamza, I hope I answered your question. जी how बस we are about to wrap up, so थोड़ी सी एक दो सवाल आई थिंक सो मेरे रह गए हैं, वो ये है कि how do you see supply chain evolving as a career for the students, for the professionals? बहुत सारे सवालात आते हैं कि सर सप्लाई चेन में ही रहें हम या चेंज कर लें फील्ड अपनी, या बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि सर सप्लाई चेन फील्ड है कैसी, would we be able to become a C-level executive in future, या हम वही डेटा एंट्री या वही काम करते रहेंगे? तो कैन यू शेयर सम लाइट के हाउ डू यू सी दिस सप्लाई चेन प्रोफेशनल के आगे क्या ग्रोथ है, इसमें क्या इवॉल्वमेंट है, क्या चीजें दे शुड बी अवेयर के व्हेन कमिंग या व्हेन कमिंग अप द लैडर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह चीजें देखी जाए? आई थिंक आपने जो सवाल पूछा हमजा, इट्स ये पूरे ट्रेनिंग सेशन का सवाल पूछ लिया आपने एक्चुअली. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट simpler manner and implementation manner as well. देखिए सप्लाई चेन इज इवॉल्विंग फील्ड. अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में एक बज़वर्ड है कि जो फील्ड आती है लोग उसके पीछे जाने लग जाते हैं विदाउट नोइंग द मोर डिटेल अबाउट इट. एक जमाने में शायद आईटी का बूम था, एवरीबॉडी वाज इन आईटी. एक जमाने में शायद टेक्सटाइल का बूम था,
एवरीबडी वाज स्टडिंग टेक्सटाइल। एक जमाने में शायद इंजीनियरिंग का बूम था, तमाम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। एक जमाने में मेडिकल का बूम था। आजकल जो बूम है मार्केट के अंदर वो सप्लाई चेन है। और सप्लाई चेन अगेन इज अ वेरी टफ फील्ड। अगर आप सप्लाई चेन को प्रोफेशनल ऑप्ट करना चाह रहे हैं, शुरू के 5 टू फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो इस नॉट के अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मैं इस एसी के रूम में बैठ के सप्लाई चेन ऑपरेट कर सकता हूँ, नेवर। मैं सप्लाई चेन में फेल हो चुका हूँ, ये हो चुका होता है अगर मैं इस तरह की बिकॉज द वे द प्रेशर आर कमिंग, द वे द एक्सपेक्टेशन आर इवॉल्विंग फ्रॉम द सी लेवल with my peers and with my juniors, and so again, I mean, with my stakeholders, with my board. So again, the entire situation has been changed. So I work with a different scenario, starting from the very junior position, going on the ground, and then I work with the operation team and they work with the manufacturing side and understanding my supply chain and my supply chain. So that give me a lot of boost of the supply chain and that give the visibility about how the supply chain is function. So again, supply chain is not like that. We work in the 9 to 5 or is the office work. So first 5 year, 10 years is a very tough and work holic as well. Second thing, supply chain is 24 hours job. Hamza. So again, repeat 24/7 job actually, because supply chain is moving throughout the globe all that time. So it doesn't mean you will work 24/7. Your process should have to be operate in such a manner, but through the mobile, through the web, you are well connected. In case of any issue, you will get the message. In case of anything, your contingency must be there. So supply chain is a nightmare for several people. कुछ लोग आते हैं expectation बनाते हैं, unfortunately उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते या एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज अदर फैक्टर जो कि हमें कंसिडर करना है। थर्डली, सप्लाई के प्रोफेशनल आर फेल्ड, अनफॉर्चुनेटली आई एम यूजिंग इट टू जस्टिफाई देयर सर्विसेज और देयर वर्क, क्योंकि फाइनेंस से लिंक नहीं होता। अल्टीमेटली हम बैक ऑफिस या कलर वाली जॉब के अंदर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। फोर्थ चीज लास्ट, बल्कि आई थिंक एक लास्ट एक चीज और ऐड कर दूंगा। सेकंड लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर दैट आई थिंक आई ऑलरेडी शेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन। As per the global report of the World Economic Forum, supply chain leaders are really struggling to hire the top talent. So, so if they are doing the interview for 10 candidates, so they are able to short only 3 candidates. In Pakistan, this ratio, as per my experience, is around 90%, 95%. So whenever I'm inviting any candidate, so he has done the supply chain, but unfortunately, he is missing the basic understanding, because we are not expecting as a hiring manager, the person should have to know. First, we are checking some basic hard skills, supply chain skills. Second is the soft skills, that extracurriculum activities, and engaging with the stakeholders. Someone coming in this webinar and then learning this interesting discussion, and similarly the seminar that we have attended last day. So people invested the time actually, because the seminar was finished around 10:20, 12:30, actually is midnight. So again, extracurriculum activity is also mandatory for the supply chain profession as well. Last thing, one model that is very popular right nowadays is a chain model. Chain is the collaborative, means supply chain professional should have a collaborative thing. ईगो अगर है तो ईगो वाला बंदा सप्लाई चेन में नहीं चल सकता। तो कोलैबोरेट करना है, दूसरे की लेवल पे आके काम करना है, बिकॉज मैं वाला सिनेरियो नहीं चल सकता। वी नीड टू बी लिसन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एज वेल। मुझे अपने कस्टमर के शूज पे जाके देखना है। हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारे एक्सटर्नल कस्टमर है, नो, हमारे इंटरनल कस्टमर भी है, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है बिजनेस लाने में। और बिलीव में जिस दिन हम जाने लग जाते हैं, उस दिन सिचुएशन 180 डिफरेंट चेंज हो जाती है। सेकेंड इज अ होलिस्टिक थिंग, मीन्स यू शुड हैव टू नो एंड टू एंड थिंग। अगर आप एक चीज लेके बैठे हुए हैं, अगर वो टाइमली नहीं करे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्टनर पे क्या होगा, राइट। थर्ड थिंग इज अबाउट एडॉप्टेबल। आई डोंट नो, मेरे पास अभी ईमेल आ जाए कि ये
फर्टिलाइजर मुझे मंगवाना है ये बैग से, डील हैज बीन डन विद द एग्रो, ट्रक अरेंज करें और मुझे कल सुबह डिलीवरी चाहिए. इज नो प्लान, इज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस रिक्वायरमेंट. The third, fourth thing is about the influential. You should be influential in such a way कि जिस तरह मैंने शेयर किया, अगर आप अपनी सप्लाई चेन का बंदा अपनी सीट खुद लेके चले, अगर आप कोई क्रिटिकल जगह बैठे हुए हैं तो यू कैन गो एंड देन यू कैन सिट एज ऑब्जर्वर एज वेल, so you will learn a lot actually. The last thing is about the narrative. There's an N. Means you should have to know to tell the story. Storytelling is also the one of the evolving skills that is needed in supply chain. प्रॉब्लम के अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं बताएं, मतलब कि उसके पीछे बैकग्राउंड बताएं, then it will be the more appealing with respect to the financial perspective, with respect to the again अगर आप कोई स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं तो आपको ट्राइंगल के तीनों इंडिकेटर्स रखते हैं. वन इज द सर्विस लेवल का इम्पैक्ट है, कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, या सोसाइटी या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. तो ये इम्पैक्ट के साथ जब आप स्टोरी टेलिंग नैरेटिव बताएंगे तो यू नो योर रोड टू बिकम अ सीएससी बी वेरी इजी एक्चुअली. सो करंटली जो आफ्टर कोविड एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 to 10 years जो सीओ लेवल के ऊपर जो कैंडिडेट देखे प्रेडिक्टेड है वो सीएससीओ से ही आने वाले हैं, मतलब चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर. सो नाउ अ डेज इन कंपनीज देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन कंपनीज टू कंपनीज, there is a competition between the supply chain of one company to the another supply chain of another company. चीजें सेम है, जितना सप्लाई चेन इफेक्टिव होगा, जितना एफिशिएंट होगा, जितना प्रॉफिटेबल होगा, उतनी सस्टेनेबिलिटी या उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी. Thank you. We've got a question. Mohammad Haris Khan का एक question है. He has raised his hand. Haris, are you available there? Yes, Assalamu alaikum. Waalaikum. Hamza bhai, thank you so much for arranging such a good session, and Kashif, thank you so much for sharing your expert opinion, expert directions. बेसिकली मेरा सवाल ये है कि हम जब बात करते हैं कि सप्लाई चेन जो है वो 24/7 की जॉब है, बट वो ये जो प्रैक्टिस है ये हमें शायद पाकिस्तान में ज्यादा नजर आती है. अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें लाइक यूके, लाइक दुबई, लाइक अमेरिका, वहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि वो बहुत सिस्टमैटिक उसमें काम कर रहे होते हैं, तो वो 24/7 का जो कल्चर है वहाँ पे हम उस तरीके से नहीं देख पाते. उनका सिस्टम इतने स्ट्रांग है जिसकी वजह से जो है वो शायद उसको जो है कोई भी बंदा आता है और उसको जो है वो मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़ता है, तो एक बंदे के ऊपर जो है वो 24/7 की जो है वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती. तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे. थैंक यू हारिस. अच्छा, इसके अंदर मैं काशिफ साहब से भी बहुत थोड़ा सा मतलब वीव गॉट थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो बस इन 1 मिनट अगर वो हमें बता दें. फिर मेरा भी एक कमेंट है इसके ऊपर छोटा सा, तो आई विल आल्सो जस्ट ऐड माय कमेंट एज वेल. काशिफ साहब फर्स्ट अगर आप. Yeah, I think Haris, thank you so much for bringing this question, this very important question. So मैंने previously explain किया आपको कि मैं स्टडीज से स्टार्ट नहीं हुआ, I started from the operational side. तो 24/7 का मतलब नहीं है कि आप लैपटॉप के ऊपर 24/7 बैठे हो. So I work with a global team in the previous company. The people are, believe me, connected 24/7 on the mobile actually. कोई प्रॉब्लम है तो SOS नंबर इज अवेलेबल. सेकेंड पार्ट इसका ये है कि जब आप प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो 3 चीजों के ऊपर बनती है. नंबर 1 इज द पीपल एक्चुअली, हाउ कॉम्पिटेंट द पीपल exist in your ecosystem actually. Second, system and process. Third one is technology. अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, सिस्टम प्रोसेस नहीं है, बिलीव में काम हो जाता है, बड़े ढंग से हो जाता है. पर अगर प्रोसेस होता है तो चीजें और ऑप्टिमाइज होती हैं. अगर आपके टेक्नोलॉजीज आती हैं तो चीजें और ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती हैं. सो 30 सेकंड और लूंगा हमजा साहब. So I work with yeah. After that, just I have to add one point and I have to give to. So I work with the fortunately I work with the 3 time zone in the previous company. ईस्ट एशिया जो कि सुबह 4 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक होती है, या मिडिल ईस्ट एरिया जो कि सुबह 9 to 6 होता है,
यूरोप जो कि 5 नून से लेके तकरीबन 8-9 बजे तक काम करते हैं। यूएस का एरिया जो कि 7 ओ क्लॉक से लेके रात 4 बजे तक काम करते हैं। तो अब ये पूरी सप्लाई चेन 24 आवर्स चल रही है, और इस सप्लाई चेन के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो यू फेस द म्यूजिक एक्चुअली। सो जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आपको इंटरेक्शन करना है अपने चारों सेगमेंट के साथ, तो आपका सिस्टम प्रोसेस ही वर्क कर रहा होता है। तो उसके अंदर हम काम ये करते थे प्रीवियस कंपनी के अंदर, हम फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते थे, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो गुड। सपोज अगर एक मेरा कोलीग यूरोप देख रहा है, सो ही विल कम अराउंड 12-1 PM। अगर कोई मेरे कोलीग मॉर्निंग देख रहा है तो ही विल कम 4 या वर्क फ्रॉम होम 4 और 12-1 बजे तक उनका ऑफ है। कोई यूएस देख रहा है तो उनकी टाइमिंग 5-6 तक है। बट अगेन प्रॉब्लम जब आता था जब सब छुट्टी पे चले जाते थे। तो बखैर बट प्रोसेस सिस्टम हैज टू वर्क आउट। पीपल आपको रखना है, सिस्टम, प्रोसेस एंड देन टेक्नोलॉजी। यस समझा। ओके, अच्छा मैं इसको थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट से देखता हूँ कि 24/7 जो है ना, उसका ये मतलब होता है कि सप्लाई चेन इज एवरीवेयर। सिर्फ काम के अंदर काम की हद तक नहीं, मतलब काम को भी देखना है, जो जैसे अभी काशिफ साहब ने बोला है, बट सप्लाई चेन आपकी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर भी है। जैसे कि अगर आप आफ्टर ऑफिस आवर्स कहीं डिनर पे गए हैं या कहीं लंच कर रहे हैं या इवन आप ग्रोसरी लेने गए हैं, तो वहां पर भी सप्लाई चेन चल रही है एंड यू आर इंटरलिंक विद दैट। हम लोग उस एस्पेक्ट से प्रोबेबली नाइस पॉइंट। इतना नहीं नोट करते कि सप्लाई चेन जो है हमारे अराउंड कितनी है। कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मेडिसिन लेने गए हैं या अगर इवन हम ग्रोसरी लेने गए हैं यहाँ पर इम्तियाज पे, चेसअप पे या कुछ, तो जब व्हेन वी एंटर एज अ कस्टमर, बट इफ वी एंटर देयर एज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल प्रोबेबली, और वहां पर हमें वो चीज ना मिले, तो प्रोबेबली वी कैन थिंक इमीडिएटली के बैक एंड पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की चीज इशू आया होगा या कुछ और मेन प्रिंसिपल की तरफ से या मेन जो कंपनी है उसकी तरफ से डिलीवरी नहीं हुई होगी। तो उस एस्पेक्ट से वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद सप्लाई चेन 24/7। ठीक है, तो एक तो वर्क वाला एस्पेक्ट काशिफ साहब ने बताया, थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब ऑन दैट एस्पेक्ट। एक ये है कि डेली लाइफ के अंदर इट्स, जी हारिस। सर बेसिकली हारिस anything? मैं मतलब मैं भी इस फील्ड में ऑलमोस्ट जो है वो अराउंड 20 इयर्स मुझे हो गए लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग साइड पे। तो मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान का कल्चर जरा डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे सेगमेंट वाइज जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी हुई होती है। और अगर हम अपनी डोमेस्टिक उसमें घर जाने के बाद की सप्लाई चेन को देखें तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी फूड सेंटर जा रहे हैं तो जो कुक है वो कुकिंग ही कर रहा है और जो सर्वेंट है मतलब सर्व करने वाले जो हैं वो सर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइन की हुई है। बट इन पाकिस्तान बिल्कुल हम अगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे उसमें देखें कि वहां पर एक बंदे के ऊपर जो है वो कई कई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाती हैं। तो इसमें जिस तरीके से हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरे कंट्री की कंपनी के लोग जो है वो अगर कोई गलती करते हैं तो उसको रिपीट नहीं करते। बट यहाँ पे रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस इस वजह से हो जाते हैं कि हम लोग जो है वो लेस मैन पावर से मैक्सिमम जो है वो वर्क लेने की कोशिश करते हैं। माइट बी मतलब इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज जस्ट कमेंट। जी बिल्कुल, मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ बिकॉज वी आर आल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही हारिस, ऐसी ही है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर यूजली ये होता है कि एक बंदे के ऊपर 3 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं, और वो अगर बहुत अच्छा कर ले तो वो शायद 2 और बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं। तो टोटल एक बंदा जो है वो 5 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चल रहा होता है। बट कमिंग बैक टू काशिफ साहब इनिशियल जो उन्होंने बताया था कि प्रोसेस मैपिंग, अगर आपकी वही वाली बात जेडी क्लियरली डिफाइंड है, आपका रोज का डेली वर्क जो है वो एक जगह जॉटेड डाउन है, तो इट बिकम्स इजियर टू हैव दैट लेवरेज के यू आर वोंट बी डिस्टर्ब, या आपका जो टाइम स्पेन है फॉर वर्किंग 9 to 6 या 9 to 5, या अगर आपके लास्ट इवनिंग आवर्स हैं या नाइट आवर्स हैं, तो उसके हिसाब से जितनी क्लैरिटी से जेडी बनी हुई होगी आपकी, जितना आपके प्रोसेस खुद से प्रोसेस मैपिंग की हुई होगी, तो दैट वुड assist you, help you in having a clarity in your after work life as well. क्यों काशिफ साहब, am I right? Yeah, I just want to explain in a two perspective. One is the SLA, service level agreement. So problem ये होता है कि
वी आर वर्किंग इन द फायर फाइटिंग मोड एक्चुअली। मैं सबसे एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह अगर आपने फायर फाइटर को देखा होगा तो हमारे सप्लाई चेन वाले आते हैं और फायर फाइटिंग में लग जाते हैं। क्यों? जब आप उनके सिस्टम पे जाते हैं तो प्रोसेस नहीं होते और कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं होता रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कस्टमर। सप्लाई चेन वाले हम लोग चैलेंज नहीं करते कि भाई ये काम 5 डेज में होगा। इज इज यू नो वर्क फ्लो या एक लिस्ट है हमारे पास, अगर ये काम पहला होगा तो 2 काम आपके डिले होंगे, राइट? सो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारा नहीं होता, जिसकी वजह से शायद हम जस्टिफाई नहीं कर पाते वर्कलोड। सेकंड प्रोस्पेक्टिव इसका, बल्कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही है कि जब आप अपनी जॉब रोल को फाइनेंशियल वे से कंपनी के बॉटम लाइन या फाइनेंशियल वे से जस्टिफाई नहीं कर पाते तो आपकी पोजीशन लाइक अ क्लर्क हो जाती है। और हमेशा कंपनी की कोशिश ये होती है कि इसको कम से कम रिसोर्सेज के साथ चलाएं। तो सप्लाई चेन उनको कॉस्ट सेंटर नजर आने लग जाता है। तो जब आप जो एलिमेंट मैंने एक्सप्लेन की प्रीवियसली, आप उसको कन्वर्ट करते हैं और आप दिखाते हैं कि मेरी सप्लाई चेन 1 बिलियन में से आपको 100 मिलियन बचा के देगी, कमिटमेंट दिया हम 100%, बिलीव मी आपको जो रिसोर्सेज मिल जाएंगे, राइट? लास्ट इज अबाउट शेयरिंग द पाकिस्तानी कैंडिडेट। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट, नो डाउट, इवन आई वांट टू टेक द नेम ऑफ इंडिया एज वेल। ये जो रिसोर्सेज हैं ये ग्लोबल में बहुत डिमांड में। इंडिया मार्केट बहुत सेचुरेट हो गई है, तो नाउ पीपल आर लुकिंग एट द पाकिस्तानी मार्केट, यहाँ के कैंडिडेट्स के ऊपर। सऊदीज आर मोर स्ट्रांगली लुकिंग टू हायर टू पाकिस्तानीज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, स्पेशली इन न्यू प्रोजेक्ट एक्चुअली। और जो सऊदी का प्रोजेक्ट है 2030 अब 2050 के अंदर आ चुका है। यस्टरडे आई वाज विद सम सऊदी पीपल, सो दे आर वेरी इंप्रेसिव विद द पाकिस्तानी पीपल कि हम इनको काम देते हैं, दे नेवर से नो, और वो काम वो फटाफट हो जाता है। मतलब कि वो काम जब हम अपने सऊदी को या किसी और को देते हैं तो उसमें हफ्ते भी लगते हैं, महीने भी लगते हैं। वन ऑफ अवर डायरेक्टर, he was the ex CEO of the Procter and Gamble, he was sharing the same thing कि जब वो फाइनेंस लीड कर रहे थे तो वहां से ग्लोबल से डिमांड आती थी कि मुझे पाकिस्तानी बंदा चाहिए फाइनेंस का। सो ही वाज वेरी इरिटेटिंग कि भाई मेरे बंदे क्यों आप ले आते हैं। बोलते हैं जो फाइनेंस, जो टैलेंट पाकिस्तान के लोगों में रिजिलियंस मिलती है और जो काम करने का प्रेशर मिलता है और जिस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। इसकी शायद वजह ये है कि हम अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर मैनर पे आते हैं, तो हमारी विजिबिलिटी होलिस्टिकली हमारे प्रोसेस को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। बिकॉज वो बोलते हैं ना कि जब आप व्हेन यू फेस अ डिफिकल्टी, सो आपके लिए बड़ा इजी होता है जब आप लीड कर रहे होते हैं, अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जब सी लेवल पे बैठे हुए होते हैं। So I think so. We'll wrap it up here. Thank you, Kashif Saab, for this session. Thank you so much. We've got a group, House of Supply Chain at gmail.com. People can email to us, contact us on that. We've got a LinkedIn group, Supply Chain Beyond Boundaries, so people can join us there as well. And we'll be coming back again next week as well for another session on this webinar series for future supply chain leaders. Thank you, Kashif Saab. Thank you, the participants. so The much. link will be uploaded on YouTube as well. So anyone who missed it can watch it here on YouTube as well. Thank you all. Thank you for joining. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.